خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ چنانچہ ہم اور آپ اگر دنیا کی خبروں سے واقف رہتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس وقت عالم اسلام کے اندر چاہے عرب ہو یا عجم ہو، ہر جگہ فساد مچا ہوا ہے۔ خشکی میں بھی، تری میں بھی، سمندر میں بھی، میدانوں میں بھی، جنگلوں میں بھی، پہاڑوں میں بھی، شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی، ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے، فساد مچا ہوا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہی خشکی میں بھی اور تری میں بھی فساد پھیل گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کے پھل میں اسے مزہ چکھا دے۔ شاید کہ وہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے حرکتوں سے باز آ جائے۔ بھائیوں اور دوستو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے۔ آج ہم بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آج دشمنان اسلام مسلمان اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اسلام کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی لگا دیے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ یہ چناوی دور چل رہا ہے اور اس دور میں مسلمانوں کو ہی کسی نے اپنا مدعا بنا لیا ہے، اور ایسے وقت میں ہم اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے جبکہ ساری کائنات کے اسلام دشمنوں کی نگاہیں اسلام اور مسلمانوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہمارا کوئی بھی پرزار حال نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارے لیے ہمارا رب ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کے اوپر یقین رکھے، ایمان رکھے، اسی اللہ کے اوپر بھروسہ کرے اور اسی کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھے۔ مسلمان رجوع ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے، آپس کے اندر کسی طرح کا اختلاف اور انتشار پیدا نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور آپس میں متحد ہو جاؤ۔ اگر تم آپس میں متحد رہو گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، اور اگر آپس کے اندر اختلاف آ جائے، آپس کے اندر انتشار آ جائے تو پھر کوئی بھی قوم مسلمانوں کو آسانی سے توڑ سکتی ہے اور آسانی سے اس دنیا کے اندر مٹا سکتی ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، آج ہم دیکھتے ہیں تو پورے عالم اسلام کے اندر اور پھر ملک ہندوستان کے اندر، پھر ہم آگے اور نیچے اگر نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو اپنے سماج، سوسائٹی، معاشرہ کے اندر، اور اس سے بھی آگے ہم بڑھتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر کہیں بھی اختلاف سے خالی نہیں۔ ہر جگہ اختلاف ہے، ہر جگہ انتشار ہے۔ وجہ
क्या है, सबब क्या है? कई एक वजूहात हो सकते हैं, बहुत सारे इसके वजह है, मगर उन वजहों में एक वजह ये भी है कि लोगों के अंदर जो आपस के अंदर दरारें आती है, लोग आपस के अंदर जो मुंतशिर होते हैं, लोगों के अंदर जो इख्तिलाफ होता है, तो इसकी एक वजह यह है कि बदगुमानी, बहुत ज्यादा बदगुमानी करना। जबकि कुरान ने सख्ती से रोका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न, ऐ ईमान वालों तुम बहुत ज्यादा बदगुमानियां करने से बचो। अफसोस आज हम एक दूसरे के ऊपर तरह तरह की बदगुमानियां पैदा करते हैं, तरह तरह के गुमान करते हैं, तरह तरह के हम शुकूक और शुबहात की नजर से हम एक दूसरे को देखते हैं। शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह दौड़ता है, और शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहे, मुसलमान कभी भी आपस में मिलजुल करके रहे, बल्कि शैतान ने तो यहाँ तक हद कर दी है कि माशरा और समाज तो दूर की बात है, अपने घर के अंदर वो मियाँ और बीवी को जुदा करने में सबसे बड़ी खुशी महसूस करता है। इब्लीस जश्न मनाता है, अगर कोई शौहर और बीवी के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाए तो इब्लीस उस दिन जश्न मनाता है, शैतान खुशियां मनाते हैं। भाइयों और दोस्तों, इस्लाम ने मुसलमानों के इत्तेहाद पर, इत्तेफाक पर बड़ा जोर दिया है, इसीलिए बहुत ज्यादा बदगुमानियां करने से बचना चाहिए। हदीस है सही बुखारी की और सही मुस्लिम में भी हदीस आई है। देखिए किस तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को दर्स देते हैं, सबक देते हैं। बयान करती है नबी की बीवी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बयान करती है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ के अंदर बैठे हुए थे। मैं आई अल्लाह के नबी के पास मिलने के लिए, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर मैं वापस घर जाने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अलविदा कहने के लिए मेरे साथ उठ करके खड़े, मुझे घर छोड़ने के लिए अल्लाह के नबी मेरे साथ आ रहे थे। इत्तेफाक से उसी वक्त दो अंसारी सहाबियों का गुजर हो रहा था। जब उन दोनों सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो तेज तेज चलना शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी ने उन्हें पुकारा, आवाज दिया, क्या आहिस्ता से चलो, और याद रखो ये मेरे साथ कोई फरारी औरत नहीं है, बल्कि ये मेरी बीवी सफिया है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ऊपर बदगुमानियां कर सकते हैं। नबी ने फरमाया, इन्न शैतान यजरी तजरी फिल इंसान मजरत दम, शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की रगों की, उनके रगों के अंदर खून की तरह दौड़ता है। ये शैतान बदगुमानियां पैदा करता है, ये शैतान वसवसा डालता है। भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी थे, रसूल थे, अगर चाहते कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जानते हैं कि मैं अगर अल्लाह का नबी हूं, मगर शैतान अपना काम करेगा। अल्लाह के नबी ने कहा, शैतान ये दूसरे के ऊपर बदगुमानियां पैदा करता है, शैतान बदगुमानियां पैदा करता है, ये जिस्म के अंदर खून की तरह दौड़ता है और बदगुमानियां पैदा करता है। इसीलिए नबी ने उसे पुकार कर ये कहा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में शैतान वसवसा डाले। हमने नबी के साथ देखा था, वो कौन औरत थी, कहाँ की थी, कैसी थी, आगे नबी के पास क्या कर रही थी, तरह तरह के शैतान वसवसा दे सकता था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने पहले उसकी गलतफहमी दूर कर दी। तो बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानियां करने से बचना चाहिए। दूसरा, इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने के लिए समाज के अंदर बहुत तरह के लोग होते हैं। अल्लाह ने हिदायत की, आपस के अंदर का ताल्लुका
जांच कर लो, छानबीन कर लो, सही बात है या गलत बात है। अंतुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और किसी कौम को तुमने बगैर किसी वजह के अगर किसी कौम को तुमने ईजा पहुंचा दी तो समझ लेना जब हकीकत खुल जाएगा तो तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज तहकीक ना करने की वजह से, आपस में बदगुमानियां करने की वजह से आज समाज के अंदर, माशरा के अंदर तरह तरह के लोगों के अंदर इख्तिलाफात पाए जाते हैं, इंतशार पाया जाता है, आपस की उखुवत और भाईचारा खत्म होती जा रही है, लोगों को एक दूसरे से लोग दूर होते जा रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, गुनाहगार दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सबके सब गुनाहगार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मशहूर हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। आदम के बेटे तमाम के तमाम गुनाहगार हैं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर शख्स से गुनाहगार है, हर शख्स से खताकार है। अगर हम में से कोई इंसान ये कहे कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, हमारे अंदर कोई खता नहीं है, हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है, तो समझ लेना मेरे भाई और दोस्तों, हम बहुत बड़ी गलतफहमी में। अल्लाह के नबी ने कहा कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, तमाम के तमाम इंसान खताकार हैं, गुनाहगार हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा। मगर एक इंसान के अंदर अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी भलाइयां भी पाई जाती हैं। हर इंसान के अंदर, तकरीबन हर मोमिन के अंदर दो पहलू होते हैं, एक खैर का पहलू होता है और एक शर का पहलू होता है। खैर का पहलू अच्छाइयां भी होती हैं और उनके अंदर कुछ गलतियां और बुराइयां भी होती हैं। इसीलिए अल्लाह ने माशरा और समाज से भी आगे बढ़ करके अपने घर के अंदर अपनी बीवी के बारे में वसीयत करता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी जो है, मुमकिन है कि तुम्हारी उसकी कुछ आदत तुम्हें नापसंद आए, तुम्हारी नापसंद आए, बाशिरुहुन्ना बिल मारूफ असान तकरहू शैअन व यजअल्लाहु फीहिन्ना खैरन कसीरा। तुम्हारी बीवी जो है, तुम उसे नापसंद करते हो किसी आदत उसकी, लेकिन याद रखना वजअल्लाहु फीहिन्ना खैरन कसीरा, अगर कोई आदत उसकी नापसंद है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी भलाइयां भी है। मगर इंसान आज एक इंसान के अंदर अगर 99 अगर अच्छाइयां होती है और एक अगर गलती होती है तो इंसान उसी एक गलती को उछालते रहता है, मगर 99 अच्छाइयों को लोगों के सामने बयान नहीं करता। यही वजह है कि आज माशरा के अंदर फसादात है, बिगाड़ है। इंसान गुनाह का मादा करने का, गुनाह करने का मादा उसके पास है, फरिश्तों के पास गुनाह करने का मादा नहीं है। फरिश्ते गुनाह नहीं करते हैं, फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक है, वो या फलूना मा युमरून है कि अल्लाह ने उन्हें जिन कामों के ऊपर हुक्म दिया है उस काम में वो लगे रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की इबादतें करते हैं और शाम से लेकर सुबह तक कुछ ऐसे भी फरिश्ते हैं कि क़यामत तक वो सजदे में पड़े हुए रहेंगे, अब तक पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसमान चरचरा रहा है और उसे चरचराने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि आसमान के अंदर जर्रा बराबर एक बारिश पे एक बित्ता जगह रखने की भी एक बित्ता या एक बारिश पे जगह भी खाली नहीं है जहां पर फरिश्ते सजदे में ना पड़ेंगे। दिन रात सजदा कर रहे, इबादतें कर रहे, मगर उसके बावजूद उलमाए किराम ने कहा इंसान तमाम मखलूकात से अफजल है, फरिश्तों से भी अफजल। क्यों? फरिश्ते दिन रात इबादत करते हैं, इंसान थोड़ी सी इबादत करता है, और ये इंसान कैसे अफजल हो सकता है? हो सकता है इसलिए कि फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने गुनाह करने का मादा ही नहीं रखा है। फरिश्तों को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उन्हें और किसी ख्वाहिशात की जरूरत है, किसी ख्वाहिशात की तकमील करने की जरूरत नहीं है। और इंसान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, इंसान क्या और दीगर ख्वाहिशात भी हैं। सुबह इंसान सो के उठता है, शरीयत का पाबंद है, शरीयत का अहकाम
सुबह निकलो घर से, अपनी बीवी बच्चों के लिए तुम कमा करके लाओ, अपने बीवी बच्चों के लिए तुम इंतजाम करो, उसके खाने का इंतजाम करो, उसके पीने का इंतजाम करो, उसके कपड़े लत्ते का इंतजाम करो और सारी जरूरतें अपने बाल बच्चों के लिए इंतजाम करो। लेकिन पाबंदी के साथ ये अहकाम सुनाया जाता है, तुम घर से जा रहे हो लेकिन मेहनत करके लाना, मुशक्कत करके लाना, किसी को ठग के नहीं लाना, तुम दलाली करके मत लाना, तुम किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे करके मत लाना, तुम किसी की बेईमानी करके मत लाना, हड़प करके मत लाना, बल्कि तुम ईमानदारी के साथ तुम कमा करके लाना, हलाल रिज़्क़ लेकर के आना। तरह तरह की पाबंदियां इंसानों के साथ है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, इंसान का खाना भी करता है और तरह तरह की जरूरतें इंसान के पास है, मगर उसके बावजूद इन तमाम जरूरतों को पूरा करने के बाद इंसान अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, तो ये इंसान तमाम मखलूकात में अफजल इंसान। मैं आपको एक और मिसाल देके समझाता हूँ। एक इंसान नाबीना है, देख नहीं सकता है, अंधा है, ना देख पाने की वजह से, आंख में रोशनी ना होने की वजह से जिंदगी भर उसने कभी भी सिनेमा नहीं देखा है, कभी फिल्म नहीं देखा है। बताइए इसमें कोई कमाल की बात है? देख नहीं सकता है, अंधा है, दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से उसने कभी सिनेमा फिल्म नहीं देखा है। लेकिन एक दूसरा इंसान है जिसकी दो आंखें हैं और आंख होने के बावजूद भी वो फिल्में नहीं देखता है, नाच गाने नहीं देखता है और तरह तरह की बेहयाइयों बुराइयों पर नजर नहीं डालता है, किसी गैर मुहर्रम औरत पर निगाह नहीं डालता है और उसके बाद भी ये बचा हुआ रहता है आंख होने के बाद भी, तो ये कमाल की बात है। आंख नहीं है, नहीं देखता, कोई बात, कोई कमाल की बात नहीं, मगर सब कुछ होते हुए अगर गुनाहों से बच जाता है तो ये कमाल की बात है। तो इंसान सारी मात्रा लेकर के आया, फरिश्तों के अंदर सारी चीजें नहीं। इसीलिए इंसान को जो जन्नत वाला जो सवाल मिलेगा, जो आला मकाम इंसान को जो क़यामत के दिन मिलेगा, और वो किसी को नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, खुलासा कलाम ये हुआ कि हर इंसान गुनाहगार है, खताकार है, चाहे आलिम हो, चाहे मौलवी हो, चाहे अल्लामा हो, चाहे जो कोई भी हो, सब गुनाह करते हैं। और मेरे भाइयों और दोस्तों, जब बात चली है तो 1 मिनट मैं 5 मिनट में बात को समेट देता हूँ। भाइयों और दोस्तों, उलमा के अंदर भी बुराइयां होती है, अच्छाइयां बहुत तरह की होती हैं, और इसीलिए हर एक का कल क़यामत में हिसाब होगा, और जो जिस दायरे के अंदर है उसी दायरे के अंदर उसी तरह का उनका हिसाब भी होगा। जो कम है उसका कम हिसाब, जो जितना ऊपर है उसका उतना ही ज्यादा हिसाब। अगर इस्लाम के अंदर कोई भी हम अमल करे, पहले मैं आपको ये कहूँ, इखलास होना चाहिए, दिलायत होनी चाहिए, खुलूसियत होना चाहिए और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हमें होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी में सब कुछ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाया। हज़रत शकील माते रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, मैं मदीना आया, मैंने देखा एक जगह लोगों की भीड़ है, भीड़ के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। लोगों से पूछा ये आदमी कौन है जो भीड़ में? लोगों ने चारों तरफ से घेर करके रखा है। लोगों ने बताया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कहा कि अबू हुरैरा के पास जाके मैं बैठ गया, करीब हो गया, बिल्कुल मैं उसके सामने बैठ गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बात लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। जब उनकी बातें खत्म हो गई, लोग जब उठ के चले हो गए, मुझे तन्हाई का मौका मिला, अकेले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। मैंने कहा अबू हुरैरा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अबू हुरैरा, मुझे सच सच बताइए और मुझे नबी की एक हदीस आप बयान कीजिए जिसको आपने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सुना है और जो हदीस आपको पूरी तरह से याद भी है, वो हदीस मुझे बयान कीजिए। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करने लगते हैं, कहते हैं कि सुनो मेरे भाई, मैं इस जगह था, इस घर के अंदर मैं था, अल्लाह के नबी थे, दूसरा कोई नहीं था। इतना बयान करते हैं, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर गुजरी,
پھر اس کے بعد ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد اپنے چہرے کو پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ادھر کے اندر تھا، اللہ کے نبی تھے اور میرے پاس کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بے ہوشی کتنا وہ حدیث سوچ سوچ کر کے کتنے ان کے اندر فکر تھی، کتنا خوف تھا، حدیث بیان نہیں کر پا رہے، پھر دوبارہ کشید آ گیا ہو گئی بے ہوش ہونے کے بعد تیسری دفعہ پھر ہوش آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابی میں نے اپنے اوپر میں سہارا دے کر کے رکھا، پھر اس کے بعد پھر بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور تیسری دفعہ پھر کشیدگی ہو گئی، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ جب ہوش آیا بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے پاس آئے گا حساب لینے کے لیے، اور حساب لینے کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک حافظ قرآن کو بلائے گا، ایک قاری کو بلائے گا، اس کے بعد ایک شہید کو بلائے گا، پھر اس کے بعد ایک مالدار کو بلائے گا، تینوں سے سوال کرے گا۔ حافظ قرآن قاری قرآن سے کہے گا کہ ہم نے تمہیں سکھایا تھا، ہم نے تمہیں وہ چیز سکھایا تھا جو ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا، کہاں تک اس پر تم نے عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دن رات اس کی عمل کیا۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی شہید کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا تو قتل کیا گیا تھا دنیا کے اندر، آؤ کس لیے قتل کیا گیا تھا ذرا یہ بتاؤ۔ وہ کہے گا اللہ تیرا حکم تھا، میں تیرے دین کے لیے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے جلی سمجھے، تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھے۔ جس طرح تاریخ قرآن سے کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری سمجھے، تاکہ لوگ تمہاری پرشنسا کریں، تاکہ لوگ تمہاری تاریخیں بیان کیا کریں۔ تو دنیا میں تمہیں قاری کہا جا چکا اور دنیا میں تمہیں شہید کہا جا چکا۔ ایک مالدار کو بلائے گا ہم نے تمہیں وہ ناز و نعمت دی تھی، ہم نے تمہیں مال و دولت دیا تھا، کس چیز میں خرچ کیا؟ کہا اللہ ہم نے تیرے راستے میں صدقہ کیا، ہم نے خیرات کیا، لوگوں کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کی۔ کہا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، فرشتے کہیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے پیروں پر گھٹنوں کے اندر یہ ٹھوکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے ان تین لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، ان تین لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ بھائیو اور دوستو اگر ریاکاری ہے کسی بھی انسان کے اندر، اخلاص نہیں ہے، خلوصیت نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجیے کہ اس کا انجام بڑا ہی پیارا ہوگا۔ دوسری طرف ان کا بہت اعلیٰ مقام کے بتایا، یہ علماء اور یہ شہداء اور یہ مالدار، یہ تینوں اسلام کی دین اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس طرح یہ ریڑھ کی ہڈی ہماری ہے، اگر یہ ہڈی کمزور ہو جائے تو ہم چھوٹ جائیں گے، سیدھا کھڑا نہیں ہو پائیں گے، بچہ چھوٹا سے بڑا نہیں ہو پائے گا۔ اسلام پھیلنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے شہیدوں کی ضرورت ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے مالداروں کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں اسلام کے وہ قیمتی ہیرے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، اور اسی طرح ان کا بہت اعلیٰ اور بہت بڑا اور بہت اونچا مقام بھی ہے۔ آج پورے دنیا کے اندر ہر کوئی اپنی زبان سے باتیں بیان کرتا ہے، ہر کوئی بھاشن دیتا ہے، پردھان منتری کی بات کرتا ہے، گریہ منتری کی باتیں کر رہا ہے، مکھ منتری کی باتیں کر رہا ہے، ایک ایم پی کی باتیں کرتا ہے، ایک ایم ایل اے کی باتیں کرتا ہے، ہر کوئی عوام کو فائدہ پہنچانے کی باتیں کرتا ہے۔ ابھی الیکشن کا مدعا ہے اور سب کوئی الیکشن کا دور ہے، ہر کوئی عوام کو فائدہ پہنچانے کی باتیں کرتا ہے، اور ایک طرف ایک عالم یہ بھی اپنی زبان سے کلمات نکالتا ہے، یہ بھی بھاشن دیتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کرتا ہے۔ یہ کام کرو گے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، یہ کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو ایک علماء بھی بیان کرتے ہیں اور یہ پردھان منتری، گریہ منتری، منسٹر بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر بات ہے اس کی بات ہے
रहे, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाए, वो मेरा सालिया और वो खुद भी नेक अमल करे, वो कहा भाई नबी मुस्लिमीन, और वो खुद कहता है कि मैं भी मुसलमानों में से हूँ। और अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिस शख्स के अंदर भलाई करना चाहता है, भलाई का इरादा करना चाहता है, जिस बंदे के साथ अल्लाह ताला भलाई का मुआमला, खैर का मुआमला करना चाहता है, उसे बिल्डिंगें नहीं देता है, गाड़ियां नहीं देता है, उसे मालो दौलत नहीं देता है। अगर अलग से देते तो ये अलग बात है, वरना असल चीज जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे दीन की समझ का बताता है। ये वजह के नबी ने वरसतुल अंबिया कहा, अंबिया के वारिस कहे, किसी और को अल्लाह के नबी ने नायब अपना नहीं बताया, मगर उलमा को कहा कि ये नायब रसूल हैं, ये रसूल के नायब हैं। मेरे भाई और दोस्तों, तो जिस तरह उलमा अपने अमल की वजह से जहन्नम के गड्ढे में जा रहे हैं और उन्हीं से जहन्नम ढका ही जाएगी, इसी तरह उनके बहुत बड़े मकाम भी हैं। और उलमा के खिलाफ करने वालों के लिए भी बहुत ही भयानक अंजाम है। जो दावत और तबलीग के काम में रुकावट करने वालों का भी बड़ा ही भयानक अंजाम है। दुनिया के अंदर कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं और सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए सरकार की तरफ से गिरफ्त होती है। अल्लाह के दीन में, अल्लाह के दीन फैलाने वालों के काम में बाधा डालने वाले की तरफ से अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी, और वो सहाबी उनके पीछे एक आदमी हमेशा लगा हुआ रहता था जिंदगी भर। जब उस आदमी की मौत होती है, जब मौत के वक्त कलमा ज़बान से नहीं निकलता है और कहता हा अबू हुरैरा, हा अबू हुरैरा, लोग कहते क्या बात है, ये फिरा अबू हुरैरा कहता है ये मौत के वक्त कलमा नहीं को पढ़ रहा है, कल जिंदगी भर ये अबू हुरैरा के पीछे पड़ा हुआ था, आज ये वजह के कलमा के बजाय अबू हुरैरा कहता है। इसी तरह साथ इब्न वक्कास ये अपने कौम के इमाम थे, लोगों ने उनके ऊपर तहमत इल्जाम लगाया, लेकिन उनका अंजाम बड़ा भयानक हुआ और बुढ़ापा की उम्र में पहुंचे, भवें भी उनकी सफेद हो गई और अंत में वो लड़कियों को छेड़ने भी लगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे और मकामात है, मैं बयान नहीं कर सकता। आखिर उलमा का जो मकाम है, फजीलत है, अगर उलमा ना बयान करे ताकि कौन बयान करेगा। और मेरे भाइयों और दोस्तों, इसीलिए हमें उनकी अच्छाई बुराई दोनों चीजों को देखना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अंबिया भी रश्क करेंगे और शुहदा भी इनके ऊपर रश्क करेंगे, और अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाएगा। जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उनके अंदर आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन।